if you are back in 2015, would you do things differently or you would follow the same path? डैम और बराज में क्या डिफरेंस? वही लखनऊ इज कॉल्ड नवाबों का शहर। क्या फ्रीबीज को फ्रीबीज कहना सही है? Please, may I come in? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please take your seat. Thank you, sir. Kaustab, Ji, sir. comfortable? Yes, sir. Kaustab, would you like your interview in English or Hindi? Sir, I am comfortable in both, sir. Both languages? Okay. Yes, sir. But you will prefer English? Yes, sir, I will prefer English. But, sir, during the board, sir, it happens that they are tilted towards Hindi, so. Okay, not a problem. Kaustab, so first of all, give us your brief introduction. Yes, sir. Sir, my name is Kaustubh Tripathi. I come from Lucknow. I did my schooling from City Montessori School, class 10th and 12th. And after that, I joined IIT BHU Varanasi. I pursued engineering in civil engineering. And after that, sir, mainly I have been preparing for different competitive examinations. And apart from it, sir, my hobbies include exploring new places and bike riding along with playing badminton. Okay. So Kaustab, you have done your civil engineering from a prestigious institution, Yes, IIT sir. BHU, and that too in 2015. Yes, Since sir. 2015, what have you been doing? Sir, largely preparing for the government services. And sir, apart from it, sir, I devote some part of my time as a freelancing to teach students, guide students towards these examinations, sir. Okay. But don't you think that after having done your civil engineering, you should have taken up a job? Even if you have been preparing for competitive examination, 1 year, 2 year of preparation is good enough. Yes, sir. Sir, things happen like again and again being caught in the cycle of giving mains and interview. So the idea of joining some job and not being able to completely dedicate myself towards this examination. So that suppose you prevented have me. to go back in time, Yes, sir. and after having seen that how it works, like if you are back in 2015, would you do things differently or you would follow the same path? Sir, I am a believer in whatever happens for some reason. So, sir, despite being a long time during this gap for my passing out and this time, sir, each and every day was like an experience. This examination, this preparation, it helps build my personality. And so I don't have any kind of grudges that I should have been doing something else, because this is what I have been wanting ever since. And so I don't think so that Okay, anything. so you would like to do it the same way, right? Yes, sir. Kaustab, you come from Uttar Pradesh and Lucknow. UP we know is a very big state. Yes, sir. So there have been demands that it should be bifurcated or trifurcated. Yes, sir. What according to you would be a good idea? Bifurcation, trifurcation, or keeping it as it is? Sir, there are some of the advantages of bifurcating or trifurcating it on some different kind of basis. But sir, ultimately there are also a number of losses if we are going to see that. Because being a very large state having a large number of resources, Uttar Pradesh has a tremendous amount of potential. And in the recent times, sir, the amount of infrastructure work for different connectivity, the different steps that have been taken to solve the regional disparity, which was one of the main reason for the demand of creation of new states. So, sir, I think that in the present scenario, it is best to leave UP in this way and focus more on the different issues like how the development can be ensured to reach at the last bottom rung of the ladder, sir. Okay. Kaustab, recently we have seen that there was an unfortunate incident which happened in Kanpur, where Yes, sir. an anti-encroachment drive was happening and like people lost their lives. So, do you think the administration should be held responsible and accountable for such incidents? Sir, definitely, if there are some lapses, in this case, if there is a loss of life, which is, I think, the ultimate responsibility of the administration to ensure the safety and well-being of everyone. So, sir, definitely some kind of accountability needs to be ensured, and things must be taken care of so that such incidents are not repeated in the future. Okay. There has been some controversy about this North Star. The Vice President has said that Parliament is the North Star.
the Chief Justice of India is on record saying that basic structure doctrine should be considered as North Star. So what is a North Star, and with whose definition of North Star you are more in conformity with? Sir, North Star can be envisaged as a guiding star, the one whose importance can be considered to be as supreme, whose verdict can be considered as last. Sir, if we look at one aspect, that Parliament being the representative of the people, the democracy, then definitely it should have a number of powers. But sir, ultimately all these powers are derived from the Constitution itself. So sir, ultimately I think biggest thing is Constitution, and even in that constitutionalism, which is very close to basic structure, that I think sir, that should be the So supreme. you would you are more in line with what CJI is saying? Yes sir, I think so. Okay. कौस्तुभ, एंथ्रोपोलॉजी इज योर ऑप्शनल, राइट? Yes ma'am. आप मुझे बताइए व्हाट इज कल्चर? मैम, कल्चर की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं. जैसे E.B. टायलर ने एक डेफिनेशन दी थी कि कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल कंसिस्टिंग ऑफ नॉलेज, बिलीफ एंड कस्टम्स दैट मेंबर्स एक्वायर एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. तो मैम इन शॉर्ट ये एक पूरा एंटायर वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा रहना सहना, वर्ल्ड व्यू, खाना पीना, ड्रेसिंग, म्यूज़िक, डांस, इन सब का मैम जो कॉम्बिनेशन है उसको कल्चर. ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट थिंग्स इन इंडियन कल्चर यू थिंक शुड नेवर चेंज? मैम, आई थिंक जो लोगों का मिलना जुलना है एक दूसरे से, जो वार्मथ होती है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा एक सोसाइटी वाली भावना है, उस कल्चर को कभी नहीं एंड होना चाहिए. ओके, एंड कौस्तुभ, व्हाट इज बॉडी शेमिंग? मैम, बॉडी शेमिंग रिफर्स कि हम किसी व्यक्ति को उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसको टॉन्ट करें, उसको बोले कि आप अच्छे शेप में नहीं हो, तो दैट इज बॉडी शेमिंग. ओके, एंड इफ यू गेट द रिपोर्ट दैट देयर इज सम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन योर एरिया, राइट, व्हाट विल यू डू देन? Ma'am, I will try to inspect the details of the report. Okay. Who all are people are involved in that? What were the reasons why this such incident took place? And if there any kind of shortcoming, that any breach of liberty of other individual, then definitely, ma'am, some kind of action must be taken in that case. Okay, Kaustubh, you are from Lucknow. Why Lucknow is called नवाबों का शहर? मैम, हिस्टोरिकली नवाब लोग ने ही लखनऊ को बसाया, जो प्रेजेंट फॉर्म में उनको लेके आया. और ना केवल हिस्ट्री में, बट आज भी मैम अगर लखनऊ की भाषा देखी जाए, वहाँ की तहजीब देखी जाए, वहाँ का खान पान देखा जाए, तो सब में कहीं ना कहीं नवाबी कल्चर काफ़ी ज़्यादा झलकता है. तो नवाबों का शहर मैम. ऐसा बोलते हैं कि जो होमो सेपियंस है ना, उनका इवोल्यूशन एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है. यस मैम. एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं ह्यूमंस में ग्रोथ की, कि और क्या क्या चीज़ें अभी और हो सकती हैं, जैसा कि एंथ्रो बताता है ना कि जी मैम. उस हिसाब से आपको क्या लगता है भविष्य का मनुष्य कैसा होगा? मैम, एक तो एविडेंस के बेसिस पे बात करी जाए तो हमारा जो टीथ है उसमें मैम जो आखिरी जो विजडम टूथ जिसको बोलते हैं, जो लास्ट टीथ है, वो मैम धीमे धीमे डिसअपियर होता जा रहा है ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस एंड इवोल्यूशन. तो मैम कहीं ना कहीं बहुत ही नियर फ्यूचर में, कुछ जनरेशन्स में ही हमारा लास्ट वाले टीथ गायब हो जाएंगे, तो 32 की जगह 28 टीथ बच जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है. लगभग 32 मिलियन ईयर से जो चला आ रहा है उसमें चेंज आ रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज है. अच्छा, ठीक है. आपको न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है? आपने अब तक कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं और कौन कौन से आपकी टू डू लिस्ट में हैं? मैम, मैंने इंडिया में 24 स्टेट्स एंड यूटीज विजिट किया है. और बाहर मतलब क्योंकि अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो मैं नेपाल और भूटान गया हूँ. अच्छा. इसके अलावा मैम टू डू लिस्ट में जो जो स्टेट्स मेरे बाकी हैं वो, और प्लस विदेश घूमने का मेरा. विदेश घूमने मतलब इंडिया में आपने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं. आप कोई जो जितना आपने घूमा है उसमें टॉप 5 स्टेट्स बता सकते हैं, अगर आपको रैंकिंग देनी हो, जहाँ पे घूम के आपको बहुत मज़ा आया और क्यों, रीजंस के साथ? मैम, एक चीज़ मैं इसमें बस ऐड करना चाहूँगा कि हर एक स्टेट मैम अपने में यूनिक है, तो थोड़ा टॉप 5 में लगाना हल्का सा मुश्किल है. हाँ. बहुत अच्छा लगने में मैम, एक मुझे मेघालय बहुत अच्छा लगा. सेकंड पे मुझे मैम अरुणाचल बहुत अच्छा लगा. थर्ड पे मैम मुझे केरला बहुत अच्छा लगा. फोर्थ पे मैम आई थिंक राजस्थान का मैं नंबर लूँगा. और फिफ्थ पे मैम उत्तराखंड को मैं. नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपको पसंद ज़्यादा आए, कोई खास वजह? मैम, वहाँ पे बहुत ही अलग संस्कृति देखने को मिलती है, बहुत ही भिन्नता है, काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस है वहाँ पे, तो मैम वो देखने में. वहाँ पे एक और भी शानदार चीज़ है जो है सफाई. जी मैम, बिल्कुल मैम.
उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? अगर आपको मौका मिले वहाँ से ये सफाई का कॉन्सेप्ट यूपी में लेके आने का, तो आप कैसे लाएंगे? मैम, एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो यूपी की जनसंख्या का साइज, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लार्ज है, तो काफ़ी चीज़ों का सही से प्रबंधन करने में थोड़ी चुनौतियाँ आती हैं। पर मैम, अल्टीमेटली सफाई तभी हो सकती है जब इसको जन आंदोलन बनाया जाए, जैसा कि सरकार का भी प्रयास रहा है कि स्वच्छ भारत के थ्रू हम लोगों में एक अवेयरनेस लेके आए कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। इसके साथ साथ मैम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वेस्ट कलेक्शन का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो वेस्ट का यूटिलाइजेशन है, जैसे कि हम प्लास्टिक वेस्ट से यूज़ करके हम उसको रोड पे बनाएं, तो इस टाइप की चीज़ें में हम प्रमोट करेंगे तो धीमे धीमे स्वच्छता आ सकती है। थैंक यू सर। कौस्तुभ, मुझे ये बताइए आपके नाम का क्या नाम, मतलब क्या है? सर, कौस्तुभ एक मणि होती है जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। इसको भगवान विष्णु अपने गले में पहनते हैं, तो ये सर बहुत ही महत्व रखता है। इसके अलावा सर, कौस्तुभ का ये भी अर्थ है कि कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ एंटायर लिविंग बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो भगवान विष्णु की आपने बात की, इनके 4 हाथ बताए जाते हैं और चित्रों में भी हम लोग देखते हैं, तो इन चारों हाथों में क्या क्या है? सर, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, थोड़ा मैं जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना बताना चाहूँगा। ट्राई करिए। सर, एक हाथ में कमल पुष्प है। क्या नाम है उसका? सर माफ करिए, नाम मैं भी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है। सर, एक हाथ में चक्र है। उसका नाम तो पता होगा। सुदर्शन चक्र। ठीक। जी सर। और सर, एक हाथ में, सॉरी सर, आगे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आपने बीटेक किया है कहाँ से? बीएचयू से? जी सर। किस ब्रांच में? सर, सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में। तो व्हाट इज़ अ बैराज? सर, बैराज एक स्ट्रक्चर है जो कि वाटर के स्टोरेज और उसके सही टाइप से कंडक्टेंस करने में मदद करता है। डैम और बैराज में क्या डिफरेंस है? सर, आई एम नॉट श्योर सर, मतलब बहुत सर, बेसिक बात है। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इस चीज़ में। अच्छा चलिए, ये बताइए कि आप एंथ्रोपोलॉजी ही आपका ऑप्शनल 7 साल से है, जब से आपने बीटेक पहला, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर, ये मेरा यूपीपीएससी में 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है, तो आपका यही ऑप्शनल रहा है? नहीं सर, शुरू में सर मैंने ज्योग्राफी लिया था। अच्छा, जी सर। ज्योग्राफी से आप एंथ्रोपोलॉजी में शिफ्ट कर गए। अच्छा, तो ज्योग्राफी अभी भी जीएस में तो है ही आपके, तो क्या अंतर है टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में? सर, दोनों साइक्लोन के मेन उत्पत्ति में जो ओरिजिन है उसमें अंतर है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सर हीट, जो कन्वेक्शन हीट है उसकी वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से बनता है, और इसका सर जो ओरिजिन है वो ओशंस पर ही होता है। व्हाट इज द रीजन व्हाई दीज साइक्लोन्स ओनली ओरिजिनेट इन ओशंस? सर, क्योंकि उसको जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि एक परमानेंट लो प्रेशर क्रिएट होता रहे, मेंटेन होता रहे, तो लगातार जो एनर्जी ड्राइव चाहिए उसको, वो सर उतना क्लीन सरफेस सिर्फ पानी पे ही मिल पाता है। रीज़न बीइंग सर, लैंड जो है वो यूनिफॉर्मली हीटेड नहीं है, तो सर वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट्स बन सकते हैं, तो एक परमानेंट लो प्रेशर क्रिएट होने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसमें कोई इवेपोरेशन का रोल नहीं है, लेटेंट एनर्जी का रोल नहीं है? जी सर, जी सर। मेन रोल तो यही है। एनीवेज, ये बताइए आइस एज क्या होती है? सर, आइस एज वो पीरियड है अर्थ की हिस्ट्री में जब लगभग पूरा अर्थ इक्वेटर तक आइस से कवर्ड था। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं है आइस? क्या ऐसा हो गया? सर, धीमे धीमे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वार्मिंग होती है, उसकी वजह से बर्फ पिघलती चली जाती है। आइस एज तो एक ऑल्टरनेट फिनोमेना है, आता है जाता है। जी सर। अभी हम लोग किस पीरियड में, होलोसीन कहते हैं? जी सर। तो होलोसीन तो एक इंटरग्लेशियल पीरियड कहा ही जाता है। जी सर। प्लीस्टोसीन में तो आइस एज आई गई। जी सर, जी सर। क्यों? सर, CO2 की मात्रा बढ़ने से सर। वो तो लगातार ही बढ़ रही है सर, बट अलग अलग समय पे अलग अलग घटनाएं हुई, जैसे कि सर एक टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और अर्थ के ऑर्बिट का टिल्ट कितना है? सर 23.5 डिग्री। यही है कि चेंज होता है? सर, चेंज भी होता है। जी सर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जी सर, जी सर। एनीवेज, मुझे ये बताइए कि e⁻x का ग्राफ अगर देखें तो याद आ रहा है कि नहीं? जी सर। याद आ रहा है। क्या स्पेशल बात है इस ग्राफ में? क्या सिखाता है हमको लाइफ में? सर, ये सिखाता है कि कई बार हमारी शुरू में जो चाल है वो धीमी हो सकती है, बट आगे एक बार हम जब गति पकड़ लें तो और उड़ान भर सकते हैं। एक लास्ट बात आपने अभी मैडम से बात करते समय जिक्र किया कि सफाई आप इसमें सुधार करेंगे। मुझे ये बताइए कि उत्तर भारत में
in fact almost all the regions of northern plains, this element of cleanliness will be definitely less from the plateaus and anywhere else. So what is the reason? Is it some geographical connection और ये केवल हमारी आदतों के कारण है? नहीं सर, इसमें डेफिनेटली जोग्राफिकल कनेक्शन भी है। हाँ, क्या है? रीज़न बीइंग सर, क्योंकि हम बहुत ही लैंडलॉक्ड हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी ज़्यादा है, तो सर जो परमानेंटली ब्रीजेस चल रही हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन की साफ़ सफाई नहीं हो सकती है। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह चल रही हैं उनका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वगैरह के थ्रू वहीं पर ट्रैप हो जाएंगी। नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, सॉयल है, ड्राइनेस आती है, बहुत हीटिंग होती है, डस्ट क्रिएट होता है। प्लेट्यू में इस तरह का नहीं होता। राजस्थान बगल में डेजर्ट है। दीज आर दी थिंग्स विच डेफिनेटली इज द रीजन, है ना? यस सर। तो इसको भी मेंशन करिए जब आप सर। जी सर। कौस्तुभ, अभी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है कि फ्रीबीज दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाना चाहिए। ये भी बात हो रही है कि फ्रीबीज को फ्रीबीज कहना कितना सही है। आपका क्या राय है इस बारे में? क्या फ्रीबीज को फ्रीबीज कहना सही है? जी सर, फ्रीबीज तो कहीं ना कहीं गलत टर्म हो जाएगा, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो कॉस्ट है उसको सरकार को कहीं ना कहीं बेयर करनी पड़ेगी, जिसको अल्टीमेटली लोगों को बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है तो उसको फ्रीबी बोलने में क्या मुश्किल है? सर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि लोगों को लगता है कि ये चीज़ फ्री में है तो उसको जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बेल्ट में बिजली को काफ़ी ज़्यादा फ्री दिया गया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इरिगेशन के थ्रू पानी को काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हुआ, जिसकी वजह से सॉइल लेवल भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, पंजाब वाटर लेवल सर। तो उसको हम फ्री भी नहीं बोलते और फ्री में देते हैं, तो क्या ये नहीं होता? मतलब आपको टर्म से आपत्ति है या आपको फ्री में देने से आपत्ति है? सर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यूज़ करने वाले की भी कि अगर उसको फ्री में मिल रहा है तो वो तो बिना यूज़र चार्जेस के कैसे आएगी? जी सर। तो क्या आपका क्या राय है इस पे कि इसको सोशल वेलफेयर मेजर्स कहा जाना चाहिए, फ्रीबीज कहा जाना चाहिए, या बात कुछ और ही है? जी सर, सोशल वेलफेयर मेजर एक अच्छा टर्म हो सकता है। बाकी सर हर एक फ्रीबी में वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं लगाई जा सकती है। जैसे कि कुछ सर्वेस के थ्रू देखा गया कि जैसे साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन लड़कियों में वो काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके हायर एजुकेशन को सस्टेन करने में। तो सर उस हिसाब से एक अच्छी स्टडी के थ्रू, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस के थ्रू फिर हमें डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है। कभी कभी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस? सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस मामले में। बताइए। सर जिन बातों पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है सर, वहाँ पे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस मानेंगे। जी सर। अभी जो यूक्रेन वॉर है इसमें कौन एग्रेसर है? सर अगर ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स देखी जाए तो सर कहीं ना कहीं रशिया मतलब का। किसने किस पे हमला किया है? क्या यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया है? नहीं सर, रशिया ने अभी तो हमला किया। एग्रेसर किसको मानेंगे? जी सर, रशिया को माना जाना तो चाहिए। इसमें फिर भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। जी सर। जी तो ऐसे में भारत का स्टैंड ऐसा क्यों है कि जो ऐसा लगता है कि हम रशिया के पक्ष में ही हैं? चाहे हम कह रहे हैं कि मतलब हम तटस्थ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें तो हम रशिया के पक्ष में ही हैं। जी सर इसके पीछे 2-3 कारण हैं। जैसे सर एक तो हिस्टोरिकली यूक्रेन और रशिया ये एक ही कंट्री का पार्ट रहे हैं, यूएसएसआर के एक ही सिस्टम में रहे हैं। यूक्रेन का क्रिएशन बहुत पुराना नहीं है, 91 में ही उसका जन्म हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वहाँ पे, जो रशिया क्लेम करता है कि उसके जो स्लाव पीपल हैं जिनके प्रति स्टेट का अच्छा व्यवहार नहीं है, एक सेपरेटिज्म की भावना है, तो सर वो फैक्टर एक इन्वॉल्व रहा है। और अगर उसको इंडिया से कंपेयर किया जाए तो हमारा भी कुछ ऐसा इतिहास है। हमारा एक अखंड भारत से एक नया स्टेट बना जिसमें एग्रेशन हुआ, जो कि अक्सर देखने को मिलता है कि पड़ोसी देशों में थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन होता है। उसके अलावा सर इंडिया के रशिया से बहुत ही हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, स्ट्रैटेजिक टाइज रहे हैं। जब 71 में भारत को बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता थी तो रशिया ने पूरा इसका साथ दिया। तो सर मेरे हिसाब से इन सब कारणों की वजह से हम रशिया का सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कौस्तुभ ये है कि मान लेते हैं कि आपका सिविल सेवा में चयन हो जाता है, आप अधिकारी बन जाते हैं, और जिस कार्यालय में आप हैं और आप टॉप पोजीशन पे हैं, तो वहाँ आपका एक सबॉर्डिनेट है जिसका काम वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन वे में सारा काम करते हैं। एक दिन आपको एक एनोनिमस कंप्लेन मिलती है उसी सबॉर्डिनेट के खिलाफ जी सर। कि
कहीं ना कहीं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ इंडिकेट कर रही है कि उनका बर्ताव शायद कुछ महिला कर्मियों के साथ अच्छा नहीं है। जी लेकिन सर। ये एनोनिमस कंप्लेन है, किसी ने आके आपके पास कंप्लेन नहीं की है, आपको बस ये एक लेटर के थ्रू मिली है। जी सर, जी सर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर ऐसे में क्योंकि अभी वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है कि ऐसा वाकई में इंसिडेंट हुआ है कि नहीं, तो मैं सर खुद अपने पर्सनल लेवल पे जांच करने की कोशिश करूंगा। जो दोनों पार्टी हैं, जो वो एम्प्लॉय है और जिसने एलिगेशन लगाया है, जिस पे एनोनिमस है, मतलब किसी का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ जी ये सर, है मतलब कि जिस महिला पे एक्सप्लॉयटेशन का बताया गया है कि इन्होंने सफ़र किया है, तो सर दोनों पक्ष की मैं बातों को सुनूंगा। उसके अलावा सर ये जो पूरा टाइम है, इसमें कोशिश करूंगा कि जो एम्प्लॉय है, वो जो महिला है, उनके बीच में डिस्टेंस रहे, जैसे किसी का एक ट्रांसफ़र हाल फिलहाल के लिए करा जा सकता है। और अल्टीमेटली सर जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके जो सही मामले, जो सच है, उस पर मैं जल्दी से अच्छा, जल्द। कार्रवाई करने के लिए क्या कोई ऐसी कमेटी वगैरह होती है ऐसे कार्यालयों में? कुछ सरकारी वो है प्रावधान? जी सर, एक एक्ट के तहत जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत एक कमेटी बैठती है। क्या वो बोलते हैं उस कमेटी को? सर अभी मुझे थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो उस कमेटी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, या खुद ही फैसला ले लेंगे? सर क्योंकि अभी एनोनिमस है, इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं है, तो एक बार सर मैं प्रिलिमिनरी लेवल पे एक जांच करने की कोशिश करूंगा। हाँ, उसके बाद अगर आता है कि हाँ कुछ है जी फिर? सर, तो सर मैं ज़रूर कमेटी के पास जाऊंगा सर। ठीक है, ठीक है कौस्तभ, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बैठिए कौस्तभ। थैंक यू सर। कौस्तभ, ये इंटरव्यू में पहला प्रयास है? नहीं सर। पहले दे चुके हैं? जी सर। आपने यूपीएससी का भी दिया है? जी सर। फॉरेस्ट सर्विस का या आईएएस का भी? सर दोनों का एक दोनों का दिया है। वहाँ कैसा रहा परफॉर्मेंस? सर ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले 60%, फिर 65%, इस टाइप से। अच्छा, और कितने नंबर से रह गया आपका? सर मेंस में थोड़ा कम थे, तो सर उस हिसाब से एक में 26 नंबर से रहा, एक में 35 नंबर से रहा। अच्छा, और इस वर्ष का नहीं दे रहे हैं? नहीं सर। अटेम्प्ट्स हैं आपके पास अभी? सर 22 का मैं दूंगा अभी, मतलब 23 का। हाँ 22 वाला नहीं दिया 22 वाला नहीं दिया था। ठीक है, आपके हिसाब से कैसा गया कौस्तभ ये वाला? सर मुझे तो ठीक लगा, मतलब नहीं, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। आपने ऑलमोस्ट अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आप उसको जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए उसको आपने अच्छी तरीके से हैंडल किया। ठीक है, और जहाँ नहीं आता है वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हम अंदाज़ा लगाने से बचें, और अगर कहीं ऑनेस्टली एडमिट करना है कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो एडमिट करिए। ठीक जी है, सर, जी सर। देखिए अब जैसे आपका नाम है कौस्तभ, तो फिर वो विष्णु भगवान से जो उसका संबंध है और उसके बारे में सर ने जो आपसे पूछा, जी सर। तो अपेक्षित है कि आप उसके बारे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बेटर आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेंगे अच्छे से। जी सर। राइट, बाकी आप बीटेक हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे गए। ठीक जी है, सर। तो बैराज, डैम वगैरह ना, डिफरेंस थोड़ा बेसिक्स आप देख लेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कुछ सिविल इंजीनियरिंग मार्वल्स बताइए। तो जैसे वो जो हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, तो इन सब पे भी आपसे पूछा जा सकता है। मॉर्बी ब्रिज में अभी एक जो इंसिडेंट हुआ, तो क्या वजह है ना, सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीज़ें आपके से पूछी जा सकती हैं, जी को सर। देख लेंगे। और सिचुएशन हैंडलिंग भी आपका ठीक था। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, जी ठीक सर, है, आईसीसी, तो थोड़ा सा ये हमको मतलब अवेयर रहना है कि मतलब क्या सिचुएशन है, उसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ के लिए जिम्मेदारी हम खुद नहीं ले लेंगे, मतलब जो उसका जो प्रोसेस है उसको जी फॉलो सर, करेंगे। ठीक है, एनोनिमस अगर है तो डेफिनेटली मतलब उस पर आप डायरेक्टली एक्ट करने नहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं सीधा आईसीसी को दे देंगे। तो एनोनिमस है तो पहले हम कुछ प्राथमिक लेवल पे जो आपने बोला, ठीक जी है, वो सर। हम करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें कुछ तथ्य मिलते हैं तो आगे हम कार्रवाई करवाएंगे। और एंथ्रो वगैरह के में भी आपने जो सवाल पूछे गए आपसे, वो आपने बेटर आंसर किए। हिंदी इंग्लिश का आप ये ध्यान रखेंगे कि सवाल अंग्रेजी में आ रहा है, इंग्लिश में उत्तर दीजिए, जी सर, जी सर। हिंदी में आ रहा है, हिंदी में उत्तर दीजिए। मिक्स नहीं करना है कि जो कि आपने नहीं किया, लेकिन वो आप ध्यान भी रखेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है कौस्तभ, तो हम लोगों की तो यही राय है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
सर वो एक बस डैम बैराज में एक बार डिफरेंस। बैराज जनरली जब रिवर को डाइवर्ट करते हैं वाटर स्टोर करके डाइवर्जन के लिए, जैसे फरक्खा बैराज वर्ड यूज़ करते हैं, डैम नहीं वहाँ यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोटा बैराज है एक आगे, तो जाके एक बार डिफरेंस देख लीजिएगा। फिर इसी तरह से ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम क्या होता है, क्योंकि आपने आप वहाँ बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग हमने की है और BHU से की है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से पूछेंगे, है ना। जी सर, थैंक यू सर। All the best. थैंक यू सर, थैंक यू मैम।